So, shall we start? Huh? Okay. So, yesterday we have seen about Mendelian disorders. Mendelian disorder means gene disorders. Mendelian disorder, color blindness, hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, which are caused due to gene defect. They are called Mendelian disorders. And other than Mendelian disorder, in genetic disorder type, we are having chromosomal disorders. Chromosomal disorders are not Mendelian disorders. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, राइट? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Chromosomal disorders are caused due to either increase in chromosome number or decrease in chromosome number. दोनों से हो सकता है. Chromosomal disorders are due to change in chromosome number. So humans are having 46 chromosome. Instead of 46 chromosome, if any change occur, any extra chromosome or loss of chromosome, that leads to the condition called chromosomal disorders. So we get here term aneuploidy. What is meant by aneuploidy? Aneuploidy means 2n plus or minus 2. That means in diploid chromosome number, that is 2n. Diploid chromosome number, that is 2n, plus or minus 2. Either extra chromosome or less chromosome. Either extra chromosome, 1 chromosome भी extra हो सकता है और 2 क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो सकता है, या 1 क्रोमोसोम लेस भी हो सकता है, या 2 क्रोमोसोम लेस भी हो सकता है. 2n plus or minus 1 or 2 is called aneuploidy. So what is aneuploidy definition? Either addition or deletion. Either addition or deletion of 1 or more chromosomes. 1 or more chromosomes from a diploid cell. From a diploid cell is called aneuploidy. How many types of aneuploidy? कितने टाइप की aneuploidy होगी? तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप है मोनोजोमी, बोलेंगे उसको. मोनोजोमी का मतलब होगा 2n माइनस 1, मतलब एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए. 2n माइनस 1 समझते हैं. माइनस 1 डिप्लॉयड नंबर में से एक क्रोमोसोम कम हो गया. सपोज इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस हैव 45, तब मोनोजोमी बोलेंगे. ट्राइजोमी, ट्राइजोमी क्या होगा? 2n प्लस 1. ट्राइजोमी इज 2n प्लस 1. नल्लीजोमी 2n माइनस 2 होगा. और टेट्राजोमी में क्या होगा? 2n plus 2. Out of these 4 cases of aneuploidy, what is seen in humans? What is seen in humans? Monozomy and trisomy cases are noticed in human. ठीक है, ह्यूमन में मोनोजोमी और ट्राइजोमी के केसेस मिल चुके हैं. इन ह्यूमंस monozomy and trisomy cases are seen. So remaining nullizomy, tetrazomy वगैरह देख सकते हैं, प्लांट्स में वगैरह देख सकते हैं.
in human monosomy trisomy cases are seen. So let's see what are the examples are given in aneuploidy. Okay, so before going to the types of monosomy or trisomy, और एक वर्ड सीखना पड़ेगा हमें. अगर एक या दो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी बोला. आइदर चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम, दैट्स ऑल. 3 भी नहीं. और एक वर्ड आता है यहां पे पॉलीप्लॉइडी बोल के. व्हाट इज मीन बाय पॉलीप्लॉइडी? चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर. चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर. अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट में अगर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम नंबर, देन वी कॉल दैट कंडीशन एज पॉलीप्लॉइडी. चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. ह्यूमंस में नहीं रहेगा ये पॉलीप्लॉइडी. सीन इन प्लांट्स. सीन इन प्लांट्स, प्लांट्स में देखा जा सकता है ये पॉलीप्लॉइडी. व्हेन पॉलीप्लॉइडी ऑकर इफ टेलोफेज स्टेज इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. समझ गए? अब एक सेल है समझ लो, उसमें एक न्यूक्लियस है. अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए अंदर. ये पहले एक न्यूक्लियस था, नाउ देयर आर 2 न्यूक्लियस. So this stage is called telophase. क्या बोलते हैं इसको? Telophase means it is the stage of cell division in which there are 2 nucleus can be seen in one cell. As per rule, telophase के बाद क्या होना चाहिए? ये सेल डिवाइड हो जाना चाहिए. अब क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं तो it should divide. तो यहां पे लिखना चाहिए if telophase stage is not followed by, अगर टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ समझो, not followed by cytokinesis, it leads to polyploidy. क्योंकि अब जो क्रोमोसोम नंबर एक न्यूक्लियस में पहले थे, मान लीजिए यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, तो ये न्यूक्लियस में भी अब 46 हैं, ये न्यूक्लियस में भी 46 है, मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया. तो हम ये कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी. होल सेट में चेंज हो गया ये. एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था? 1 और 2 क्रोमोसोम चेंज हो रहे थे. बट हियर पॉलीप्लॉइडी, चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर पॉलीप्लॉइडी? इफ टेलोफेज स्टेज is not followed by cytokinesis, it leads to polyploidy condition. Okay, next. अब हम जो है आगे बढ़ते हुए एन्यूप्लॉइडी का रीजन बताना है. रीजन फॉर एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मतलब 2n प्लस और माइनस 1 और 2, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या कम हो जाए. तो एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है, उसका रीजन देना है. It is due to non-disjunction. Non-disjunction बोलना. It is due to non-disjunction. आप बोलेंगे ये क्या होता है non-disjunction? It is a meiotic error. एक मियोसिस में मिस्टेक हो जाता है. Meiotic error means it is a mistake during meiosis. Suppose there is a cell during meiosis. Suppose here there are 4 chromosomes. 4 क्रोमोसोम हैं. तो मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस क्या होना चाहिए? क्रोमोसोम नंबर हाफ होना चाहिए ना. ड्यूरिंग मियोसिस एनाफेज 1 में क्या होना चाहिए? 4 अगर क्रोमोसोम रहे तो 2 ऊपर जाना चाहिए, 2 नीचे जाना चाहिए क्रोमोसोम. दिस इज द इक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर. अगर सपोज 3 क्रोमोसोम एक जगह जा रहे हैं और 1 क्रोमोसोम एक जगह जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसी को हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं. इसी को नॉन डिसजंक्शन, अनइक्वल
separation of chromosome number, unequal separation. Suppose 10 क्रोमोसोम है तो एज पर रूल 5 क्रोमोसोम डिवाइड हो जाना चाहिए, 1 सेल 5 क्रोमोसोम, अदर सेल 5 क्रोमोसोम, समझ रहे हैं? इक्वली सेपरेट होना चाहिए. अगर अनइक्वल सेपरेशन होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन डिसजंक्शन वर्ड यूज करने वाले हैं. नॉन डिसजंक्शन के बारे में अगर और डिटेल में ज्यादा पूछना चाहेगा एग्जामिनर, सो ही कैन आस्क द स्टेज ड्यूरिंग विच नॉन डिसजंक्शन इज ऑकरिंग. एनाफेज 1 में हो रहा है नॉन डिसजंक्शन. ड्यूरिंग विच स्टेज? एनाफेज 1. ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सबको? What is the reason for aneuploidy? Due to non-disjunction. What is the reason for polyploidy? That telophase stage is not followed by cytokinases. That is the reason. चलिए, अब हम ह्यूमन में तो पॉलीप्लॉइडी नहीं देख सकते. देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड ह्यूमन. ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसके क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे. ऐसा है? ऐसे कुछ ह्यूमन मिलेंगे आपको जहां पे 1 या 2 क्रोमोसोम में चेंज, 1 क्रोमोसोम में चेंज मिलेंगे आपको, 1-2 केसेस. अब एन्यूप्लॉइडी में भी टाइप हैं. फिर एन्यूप्लॉइडी में भी टाइप हैं. यहां पर होता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी. So I think you got the meaning. Hypoaneuploidy मतलब क्रोमोसोम लेस हो जाएंगे, लेस, डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर. यहां पर होगा इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज हो जाएंगे यहां पर हाइपर एन्यूप्लॉइडी. फिर हाइपोएन्यूप्लॉइडी में भी 2 केस. फिर ऑटोसोमल हाइपोएन्यूप्लॉइडी, allosomal hypoaneuploidy. Autosomal hypoaneuploidy means decrease in autosome number. First of all, aneuploidy का मतलब समझ गए हैं, या तो +1 -1, ठीक है ना, या +2 -2 होता है aneuploidy में. फिर hypoaneuploidy में तो पक्का डिक्रीज ही होने वाले हैं. हाइपो मीन्स लेस. अब डिक्रीज में फिर हाइपोएन्यूप्लॉइडी में 2 केस, ऑटोसोमल हाइपोएन्यूप्लॉइडी, allosomal hypoaneuploidy. If there is any change in chromosome number in sex chromosome, decrease in sex chromosome number, hypoaneuploidy, allosomal case. समझ गए? So what is the example of autosomal hypoaneuploidy? तो यहां पर आएगा क्राइडू-कैट सिंड्रोम. क्राइडू-कैट सिंड्रोम, क्राइडू-कैट सिंड्रोम बोलते हैं इसको. और अल्लोसोमल हाइपोएन्यूप्लॉइडी, सेक्स क्रोमोसोम में कम हो जाना नंबर, टर्नर सिंड्रोम आएगा यहां पर. टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है. दैट इज टर्नर सिंड्रोम, अल्लोसोमल हाइपोएन्यूप्लॉइडी. हाइपर एन्यूप्लॉइडी में फिर 2 केस मिलेंगे आपको, ऑटोसोमल हाइपर एन्यूप्लॉइडी, अल्लोसोमल हाइपर एन्यूप्लॉइडी. ऑटोसोमल में हाइपर एन्यूप्लॉइडी में आपको एग्जाम्पल मिलने वाला है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम ज्यादा होने वाला है. और अल्लोसोमल में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. ठीक है, चलो इतने याद रखेंगे. लेट्स सी वन बाय वन. कैरेक्टर्स ऑफ क्राइडू-कैट, टर्नर, डाउन्स, क्लाइनफिल्टर. क्वेश्चन पॉसिबल हैं इधर से भी. दे कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज डिसऑर्डर्स. सो बस आपको ये याद रखना है कि आप क्राइडू-कैट में क्रोमोसोम कम होने वाला है, टर्नर में कम होने वाला है, डाउन्स में ज्यादा होने वाला है, क्लाइनफिल्टर में ज्यादा होने वाला है. ज्यादा होगा तो कहां ज्यादा होगा? वेदर इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इन ऑटोसोम
और इंक्रीज इन सेक्स क्रोमोसोम नंबर, वो भी देखना है। चलो अब क्राइडू कैट, क्राइडू कैट में क्या पढ़ेंगे? क्राइडू कैट सिंड्रोम, cry like cat, cry like cat syndrome. That means whenever they cry they produces cat like sound. Abnormalities, तो यहां पे रहेंगे abnormalities in larynx, abnormalities in larynx, larynx में abnormalities रहेंगे। माइक्रोसिफेली रहेगी, देखिए माइक्रोसिफेली मतलब स्मॉल हेड, माइक्रो स्मॉल सिफेली मतलब हेड, एंड इट इज ड्यू टू पार्शियल मोनोजोमी, मोनोजोमी मतलब -1, पार्शियल मोनोजोमी मतलब इनकम्प्लीट मोनोजोमी, एक हाफ क्रोमोजोम डिलीट होता, पार्शियल बोलते इनकम्प्लीट, पार्शियल मोनोजोमी ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर 5th का शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है, 5th क्रोमोजोम का, ये 5th क्रोमोजोम का शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म को पी आर्म भी बोलेंगे, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म भी बोलेंगे। तो जो भी हो क्राइडू कैट सिंड्रोम में शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाएगा, शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से अबनॉर्मलिटीज हो जाएंगे लैरिंग्स के अंदर और ये प्रोड्यूस करेंगे कैट लाइक साउंड। क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो गया, ऑटोसोम में चेंज हुआ या सेक्स क्रोमोसोम में चेंज हुआ? ऑटोसोम, डेफिनेटली 5th क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम ही रहता। 1 to 44 क्रोमोसोम आर ऑटोसोम। लास्ट में ऐसा लिखते हैं ना हम, 44A प्लस XY फॉर मेल, 45th and 46th क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम, स्टार्टिंग 44 तो ऑटोसोम ही है। चलिए नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्राइडो कैट के बाद। व्हाट इज दैट कंडीशन? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम इज हैविंग कैरियोटाइप, इसका कैरियोटाइप क्या होगा? 44A प्लस X0। व्हाट इज मीन बाय कैरियोटाइप? कैरियोटाइप का मतलब क्या होगा? क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल। कैरियोटाइप किसको बोलते हैं? क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल। अगर एक फोटोग्राफ है आपके पास, उसमें बता रहे हैं आप कितने क्रोमोसोम हैं, काउंट कर सकते हैं हम, तो उसको बोलेंगे कैरियोटाइप। क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेल और फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स, फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल, क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैरियोटाइप बोलेंगे। या तो आप ये बताओ कि आपके सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, उसमें ऑटोसोम कितने हैं, अल्लोसोम कितने हैं, और यू हैव टू शो द फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ योर सेल, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप का डेफिनेशन याद रख के चलो। तो टर्नर सिंड्रोम को मैं क्या बोलूंगा? अल्लोसोमल मोनोजोमी। अल्लोसोमल मोनोजोमी बोलो ना, सेक्स क्रोमोसोम में एक कम हो रहा है, अल्लोसोमल मोनोजोमी। चलो नेक्स्ट, कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? रूडिमेंटरी ओवरीज, ovaries are underdeveloped, very smaller size, rudimentary ovaries, no menses, no menstrual cycle, menstrual cycle नहीं होंगे, no oogenesis, oogenesis भी नहीं होगा, और स्टेराइल रहेंगे, शॉर्ट स्टेचर रहेगा, हाइट कम रहेगी ऐसे फीमेल की, शॉर्ट स्टेचर,
अंडर डेवलप ब्रीस्ट रहेंगे, अंडर डेवलप ब्रीस्ट. So these are the characters of Turner syndrome. That means Turner syndrome मतलब फिनोटाइपिकली फीमेल रहेंगे, ये दिखने में फीमेल जैसे रहेंगे, लेकिन उनके पास फेमिनाइन कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, फीमेल के कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल नहीं रहेंगे, ब्रीस्ट नहीं रहेगा, और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहेंगे, ठीक है, ऊजेनेसिस भी नहीं है, स्टेराइल हैं ये. तो दिस इज व्हाट टर्नर सिंड्रोम. अब आप बोले क्यों हुआ टर्नर सिंड्रोम? यू मे आस्क क्वेश्चन, हाउ टर्नर सिंड्रोम आकर? टर्नर सिंड्रोम आकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, and that non disjunction may occur during sperm formation or ovum formation. मतलब जो टर्नर सिंड्रोम फीमेल है, लेडी है, उसके जो फादर हैं और उसके जो मदर हैं, टर्नर के जो फादर मदर हैं, उनके स्पर्म ओवम में गड़बड़ हुई थी. जैसे फादर के पास क्या रहना चाहिए स्पर्म में? 22A प्लस एक्स रहना चाहिए, नहीं आया, समझो 0 आया. और मदर के पास से 22A प्लस एक्स आ गया, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बना? 44A प्लस एक्स 0. हो सकता है अब नॉर्मल स्पर्म, हो सकता है अब नॉर्मल ओवा. या तो टर्नर सिंड्रोम उनके फादर की वजह से हुआ या तो मदर की वजह से हुआ. फादर सपोज इस बार जो है फादर नॉर्मल है, 22A प्लस एक्स वाले स्पर्म बना रहे हैं, और मदर जो है अब नॉर्मल ओवा बना रहे हैं 22A प्लस 0. तो ये मिल जाएगा 44A प्लस एक्स 0. दैट मीन्स टर्नर कैन बी ड्यू टू द डिफेक्ट आइदर इन फादर स्पर्म और मदर ओवा, दोनों में पॉसिबिलिटी है. समझ में आ गया? अब ऐसे अब नॉर्मल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी नॉर्मल ओवा के साथ, तो टर्नर बनेगा, या नहीं तो नॉर्मल स्पर्म अब नॉर्मल ओवा. कौन सा भी एक अब नॉर्मल है समझो, स्पर्म में नहीं तो ओवा में. दैट इज द टर्नर सिंड्रोम. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही रेयर केसेस है ये, इट्स नॉट सो कॉमन, क्योंकि नॉर्मल स्पर्म ही रहेंगे, नॉर्मल ओवा ही रहेंगे. बट देर आर सम केसेस, वेरी रेयर केस, टर्नर के जैसे बेबी भी बॉर्न हो सकते हैं. नाउ वन मोर केस, हाइपर एन्यूप्लॉइडी में इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, डाउन सिंड्रोम है. डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप लिखते हैं, लिख के बताओ. 45A प्लस XY भी हो सकता है, 45A प्लस XX. आप गौर करके देखिए, यहां पे सेक्स क्रोमोसोम एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं, ऑटोसोम में गड़बड़ हुई है, ऑटोसोम में गड़बड़ हुई है. इंस्टेड ऑफ 44 45 हो चुके हैं. दैट इज कैरियोटाइप ऑफ डाउन्स. एंड डाउन्स मेल में भी हो सकता है, डाउन फीमेल भी हो सकता है. आप बोलेंगे सर क्राइडू कैट का क्या आता होगा कैरियोटाइप? क्राइडू कैट का बोलो. 43.5 A प्लस XY या 43.5 XX. मैं इसलिए क्राइडू कैट में मेल और फीमेल कुछ भी नहीं लिखा मैं. क्यों? क्राइडू कैट 5th क्रोमोसोम में होता, और 5th क्रोमोसोम मेल में भी रहता, फीमेल में भी रहता. इसका मतलब क्राइडू कैट मेल भी हो सकता है, क्राइडू कैट फीमेल भी. हाँ, टर्नर जो है फीमेल में ही रहता. डाउन सिंड्रोम भी जो है मेल में भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम फीमेल में भी हो सकता है. इट इज द ट्राइजोमी केस. ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम. ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम. 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा 21st पेयर में. इवन आपके एनसीईआरटी में भी एक फोटो है, ऑन पेज नंबर, हाँ
92 पेज नंबर पे है, किसी के पास 90 पेज पे है। देखो बदल गए हैं पेजेस। ओके, ये बेबी है, देखिए बेबी, उसके साइड में एक फोटोग्राफ है। एक बेबी है, उसके साइड में क्रोमोसोम की फोटोग्राफ है। मान लीजिए ऐसा क्रोमोसोम दिया हुआ है यहां पर, क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, ऐसे क्रोमोसोम दिए हुए हैं ना। मिल गया फोटो आपको। यहां पे नीचे जाके देखिए लास्ट लाइन में 21st पेयर में 3 क्रोमोसोम बताया है। कैन यू नोटिस दैट इन एवरी पेयर देयर आर 2 क्रोमोसोम, बट इन लास्ट लाइन 21st पेयर में कितने क्रोमोसोम बताया है? 3 क्रोमोसोम। उसको सर्कल कर दीजिए, 3 क्रोमोसोम। दैट इज द डिफेक्ट, दैट इज द डिफेक्ट। 21st ट्राइसोमी, दैट मीन्स 21st पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो चुका है। एंड दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट टाइम नोटिस बाय लैंगडन डाउन, डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब ये जो लोग रहते हैं डाउन्स वाले लोग, वो कैसे रहते हैं? बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, मेंटली रिटार्डेड। ओपन माउथ रहेगा इनका, ऑलवेज ओपन माउथ, सलाइवेटिंग माउथ, माउथ से सलाइवा गिरते रहेगा। लार्ज टंग, टंग जो है बाहर रहेगी माउथ के, लार्ज टंग रहेगी। और हेड दिखने में स्मॉल रहेगा, स्मॉल राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड। तो एकदम जो है देखते ही पहचाने जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले लोग, क्योंकि इनका जो है ना हेड छोटा होता है, दिखते ही मालूम हो जाता है। और ओपन माउथ, सलाइवेटिंग माउथ और मेंटली रिटार्डेड, तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और इनके जो और दूसरे कैरेक्टर क्या हैं? दूसरे कैरेक्टर क्या हैं? इनका जो पाम है, पाम इज ब्रॉड विथ ट्रांसवर्स क्रीज, ट्रांसवर्स क्रीज। मतलब इनका जो हाथ है, इनका जो हाथ है यहां पर, ये जो पाम एरिया है, इसमें एक लाइन आती है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर्व रहती है मोस्ट ऑफ द लोगों में। लेकिन इन लोगों में जो है डाउन सिंड्रोम में ट्रांसवर्स लाइन होती है, पूरी ऐसे ट्रांसवर्स लाइन जाती है, ऐसे ट्रांसवर्स क्रीज ऑन द पाम। चेक कर लीजिए। और इनका जो है ना फिजिकल, साइकोमोटार, फिजिकल, साइकोमोटार और मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे हाइट बढ़ना है, मसल्स स्ट्रांग होना है, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा। साइकोमोटार, मोटार मतलब मसल्स, मसल डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट पूरा स्लो हो जाता है। साइकोमोटार बोले तो क्या? मसल डेवलपमेंट। एंड देयर हैंड्स एंड देयर लेग्स मे नॉट बी अंडर देयर कंट्रोल। हो सकता है उनके हाथ और पैर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके साइकोमोटार फंक्शन भी अफेक्ट हो गए। हो सकता है वो किसी को मार भी सकते हैं। साइकोमोटार मतलब उनके मसल्स जो है उनके प्रॉपरली ग्रो नहीं हुए, हैंड मसल्स, ठीक है। मोटार मतलब मसल्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यूजुअली जो डाउन्स वाले लोग रहते हैं, डाउन्स क्या है ना, ब्रेन बहुत स्लो डेवलप होता है। दे मे हैव एज 30, हो सकता है उनकी एज 30 हो, लेकिन उनका ब्रेन जो है 10 ईयर या 8 ईयर बॉय के उतना हो सकता है। मतलब ब्रेन डेवलप हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो डेवलप हो रहा है। सो ये डाउन्स है। और क्या सिम्टम है देखिए डाउन्स के?
डाउन्स के और सिम्टम है, डाउन के बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, लिखना। और कंजिनेटल हार्ट डिफेक्ट्स भी रहते हैं उनको। कंजिनेटल हार्ट डिफेक्ट्स मतलब उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है बाई बर्थ, होल वगैरह। फ्लैट बैक हेड, इनका जो बैक हेड है फ्लैट होता है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर, मैनी लूप्स ऑन फिंगर। अब जैसे आपकी फिंगर है, उस फिंगर पे 1 2 3 लूप्स हैं, है ना? 1 2 3 लूप्स हैं, तो इनके पास हो सकता है 4 लूप्स भी हो सकते हैं, 5 लूप्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? मैनी लूप्स ऑन दी फिंगर। तो ये भी जो है डाउन के कैरेक्टर आते हैं। चलिए, now one more disorder that we are going to discuss is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome, ये क्या होता है भाई क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम? कैरियोटाइप बोलिए इसका पहले। 44A प्लस XXY। अब ये मेल रहता है फीमेल रहता है? आप बोलेंगे 2X हैं तो फीमेल बन जाएगा, ये ऐसा नहीं है। वॉट एवर नंबर ऑफ X, एक बार Y आ गया तो मेल ही हो जाता हो। वॉट एवर नंबर ऑफ X, सिर्फ 2 ही नहीं, 3 4 जितने भी हो। XY, 2X के बाद Y आया, फिर भी ये मेल ही रहेगा, फिनोटाइपिकली मेल। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों? 2X के बाद एक Y आया तो भी मेल हो जा रहा है। ये Y के ऊपर एक जीन होती है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बोल के, TDF जीन। TDF जीन बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। Y has TDF gene, testis determining factor। अब ये टॉल स्टेचर के होते हैं, दिखने में हाइटेड होते हैं, टॉल स्टेचर। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, पूरा दिखने में एकदम मेल ही दिखते हैं। मस्कुलाइन मतलब मेल जैसे दिखते हैं पूरा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गायनेकोमेस्टिया भी रहेगा इनमें। गायनेकोमेस्टिया मतलब दिखने में पूरे मेल ही रहेंगे, इवन फेशियल हेयर्स भी रहेंगे, मेल ही दिखने, देखकर कोई भी मेल ही बोलेगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ गायनेकोमेस्टिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्रीस्ट, प्रेजेंस ऑफ ब्रीस्ट इन मेल, ये गायनेकोमेस्टिया होगा। और क्या है देखिए इनके कैरेक्टर, हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, मतलब इनके टेस्टिस स्मॉल रहेंगे। हाइपोगोनाडिज्म बोल रहे हैं, ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म है। और स्टेराइल रहेंगे, दे आर अनेबल टू हैव देयर चिल्ड्रन, स्टेराइल रहेंगे। तो ये थे क्लाइनफिल्टर। अब बोलिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बेबीज, हाउ दे आर बोर्न? मे बी डिफेक्ट फ्रॉम द स्पर्म साइड और मे बी डिफेक्ट फ्रॉम द ओवम साइड, दोनों तरफ से हो सकता है। क्लाइनफिल्टर के फादर, क्लाइनफिल्टर के मदर, क्लाइनफिल्टर बेबीज हाउ दे आर बोर्न बोल के एग्जाम में पूछा है, तो क्या लिखेंगे आप? हो सकता है अबनॉर्मलिटी स्पर्म में हो या ओवा में हो। चलिए फर्स्ट टाइम स्पर्म में अबनॉर्मलिटी बनाए, सपोज हम 22A प्लस XY लिख दिया मैं। एक्चुअली स्पर्म में या तो X रहना या तो Y रहना, यहां पे XY दोनों लिख दिया मैं। और मदर के 22A प्लस X, तो ये पूरा फ्यूज हो गया 44A प्लस XXY बन जाता है क्लाइनफिल्टर। अब डिफेक्ट स्पर्म से ही आना बल्कि कंपलसरी नहीं है, डिफेक्ट ओवा से भी आ सकता है। तो इस बार डिफेक्ट मदर की तरफ देखेंगे, तो इस बार स्पर्म जो है नॉर्मल बनेंगे 22A प्लस Y, और ओवा बनेंगे 22A प्लस XX, तो ये बनेगा 44A प्लस XXY।
मतलब यहां पर मैं जो भी लिख रहा हूं वो हो सकता है एग्जाम स्टेटमेंट हो. इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम babies, they are born due to the defect either from paternal side or maternal side. They may have abnormal sperm or abnormal ova contribution in their fertilization. इनका जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था क्लाइनफिल्टर का, either due to defect in sperm or due to defect in ova, क्या भी हो सकता है, दोनों में से एक. एनीहाउ, लेकिन ज्यादा चांसेस क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज फादर की तरफ से होते हैं या मदर की तरफ से होते हैं? मोर. तो यहां पर हम लिखना चाहिए नोट, the chances of incidence of chromosomal abnormalities in children. Chances of incidences of chromosomal abnormalities in children increases with increase in maternal age. जितनी मैटरनल एज बढ़ते जाएगी उतने जाए चांसेस बढ़ते जाएंगे क्रोमोसोम abnormalities. A female, a woman which is giving birth at the age of 45 or at the age of 40, एक फीमेल है, उसको चिल्ड्रन हो रहे हैं 40 की एज में, 38 की एज में, तो एक ओल्ड एज में बच्चे हो रहे हैं उसको, तो वहां पर जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. मियोटिक एरर मदर साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू फादर. इवन मेल कैन आल्सो हैव क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, लेकिन जो है बता रहा हूं मैं कि इंसिडेंस कब ज्यादा हो जाता है ये चांसेस मैटरनल एज के साथ, क्योंकि मियोसिस क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है इन केस ऑफ oogenesis ऑफ फीमेल. oogenesis जो है ना डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था, थोड़ा चला फिर रुक गया, फिर थोड़ा चला रुक गया, है ना. oogenesis हम पढ़े, oogenesis में मियोटिक एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. हाँ, तो यहां पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के. अब आपको क्या करना है ये चैप्टर में परफेक्शन लाने के लिए मैं आपको वर्कआउट दे रहा हूं. देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. सबसे पहले मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूरे लगा दो, और उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन कर लो. समझे? ये तो सब एनसीईआरटी के बारिश करना है. एनसीईआरटी होना, पहले नोट्स होना, एनसीईआरटी होना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना, उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन करो. लेवल 1 लेवल 2 के मत करो, छोड़ दो, ठीक है. 100% हो जाएगा आपका. क्लियर? अब क्या है, इतनी चीजें कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका, ये 100% गारंटी है. ओके, चलो अब यहां पे एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे. जहां पे बच्चों को ज्यादा डाउट आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है. तो देखिए, बायो में मैं आप सब लोगों के लिए बता रहा हूं, बायो में जो है क्या कितना परसेंटेज देना टाइम हम पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो मैं बोलूंगा बायो में सही फॉर्मूला ये है, 80% टाइम पढ़ने में लगाना चाहिए बायो में, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे होंगे या एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे. दो मटेरियल, तीसरे मटेरियल का नाम नहीं बोल रहा मैं. जब भी आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं बायो में, या तो नोट से पढ़ेंगे या तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे. अगर आप तीसरा कोई और मटेरियल पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा. उस वजह से आपकी फिजिक्स खराब होने वाली है, केमिस्ट्री खराब होने वाली है, क्योंकि टाइम खत्म होगा. समझे? हम पढ़ना तो पूरा हर चीज से आते हैं, पूरी बायोलॉजी खत्म कर देंगे, लेकिन क्या है, टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम में हमको स्कोर करना है. उसके वास्ते जो है बेस्ट मेथड है एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स रीडिंग, उसके बाद क्वेश्चंस करना. क्वेश्चंस कितने करना,
तो ये चैप्टर के मैक्सिमम 100 क्वेश्चन करेंगे तो बायो में बहुत ज्यादा हो गया, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। बायो में उतना क्वेश्चन ज्यादा माने नहीं रखता। ओके, हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्टाइल होता है। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए, लेकिन बायो में ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस भी करना चाहिए टू हैव द कॉन्फिडेंस और हाउ टू पिक द करेक्ट आंसर, एलिमिनेशन कैसे करना, ये सब सीखने के लिए क्वेश्चंस करते रहना पड़ता थोड़े थोड़े। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाला हूं कैसे करना है, देखेंगे। पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन है ये, कितना इजी रहता है। देखो मैं एक टाइप बता रहा हूं क्वेश्चन का, एक टाइप देखो, टाइप क्या है, लेंदी टाइप। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हो सकता है लेंदी क्वेश्चन आ जाए, दिखने पे 4 लाइन 5 लाइन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो गारंटी है जितना लेंदी उतना इजी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में स्पेशली केयरफुली पढ़ना चाहिए। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द ऑटोसोमल लोसाई कंट्रोलिंग आई कलर इन फ्रूट फ्लाई हैज 2 allele, one for brown eye, other for red eye. Fruit flies from a true breeding line with brown eyes cross with flies from true breeding lines with red eye. अच्छा, इसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, नहीं मालूम। उन्हें क्या बोल रहा है, ब्राउन को क्रॉस करेंगे। सिंप्लीफाई करके लिख लेना, मैं आपको ये नहीं बता रहा ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना, इसका आंसर कैसे निकालना, मैं ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं आपको। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना। इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आए तो पढ़ के लिख लेना हम। फ्रूट फ्लाइज फ्रॉम ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन विथ ब्राउन आइज क्रॉस विथ रेड आइज, तो हुआ क्या बोलते हो, F1 में पूरे रेड आ गए बोल रहा हूं, F1 में पूरे रेड आ गए। What conclusion can be drawn from this experiment? What conclusion you can draw from this experiment? Red is dominant over brown, खत्म। देखिए लेंथ देखिए क्या है और आंसर कैसा आया। ठीक है, ऐसा रहता देखिए। तो मतलब सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन अच्छे से लिख लेना है, गड़बड़ करे तो आंसर नहीं आता, रॉन्ग हो जाता। अब फिर यही क्वेश्चन को, अच्छा ये क्वेश्चन को फिर सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करके पूछ रहा है, ब्राउन को रेड से क्रॉस करे तो रेड आ गए, ठीक है। अब आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द F1 flies described in above question mated with brown eye। हाँ, अब ये F1 को क्या करेंगे, ब्राउन के साथ क्रॉस करेंगे बोल रहा हूं। तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया, और टेस्ट क्रॉस में क्या रिजल्ट आता, 50-50, 1:1। हाँ, अब देखो टॉल प्लांट को मैं डार्क प्लांट से क्रॉस किया तो F1 में सारे टॉल आ गए, फिर ये टॉल को मैं डार्क से क्रॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1:1 मिलेगा ना। वो है ना, यहां पे सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज सेम। समझ रहे हैं, नहीं समझे, नहीं समझने आ रहा, आया ना आपको समझने। ये कैपिटल टी रहता है, ये स्मॉल टी रहता है, ये टॉल क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, ये क्या रहेगा, स्मॉल टी, क्या रेशियो आएगा, 1:1 आएगा ना। तो यहां पर भी 1:1 ही चाहना ना। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, ब्राउन रेसेसिव चूंगा इधर, चलिए ब्राउन के लिए स्मॉल आर लिख दिया मैं, रेड के लिए कैपिटल आर लिखा, तो ये रेड कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ब्राउन स्मॉल आर, तो रेशियो क्या ना, 1:1 ही चाहना। अब एक क्वेश्चन और, आज मॉर्निंग भी डाउट पूछे हैं बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेज नंबर 42 पे है ये। एक्चुअली ये चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन, यहां पे प्रिंट हो गया वो, फिर भी अब कैसे करना है बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 पे है, प्रीवियस ईयर एवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये।
कनेक्टेड विथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एवोल्यूशन चैप्टर में एक फार्मूला आता है P+Q² = 1 बोल के, ठीक है, जहां पे P² + Q² + 2PQ = 1 बोलते हैं। P का मतलब होता है यहां पे डोमिनेंट अलिल, और Q का मतलब होता है रेसेसिव अलिल, और 2PQ का मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। इतना मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है एवोल्यूशन चैप्टर का है। अब इतना मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे। ए जीन हैज 2 allele, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन? P² होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कितना आएगा? हेट्रोजाइगस 2PQ कितना आएगा? होमोजाइगस रिसेसिव कितना आएगा? समझ गए? खत्म हो गया। P का मतलब डोमिनेंट अलील, दो बार P का मतलब, एक बार P का मतलब डोमिनेंट अलील, दो बार P का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ना, दो बार P। ये P² 2 टाइम्स, दैट मीन्स कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन, ये स्मॉल ए कंडीशन, आगे का कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या करना, P की वैल्यू गिवन है, दैट इज A इज गिवन, P = 0.4 हो गया, तो Q = 1 - P कर देना, Q = 0.6 हो जाता। ठीक है, अब तो आगे कुछ भी नहीं है। P² करो, इसका कितना आता देखो, P² 0.4 का कर दीजिए, कितना होगा? 0.16 हो जाएगा। और Q² का कितना आएगा? 0.36 आएगा, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। 2PQ कितना आएगा? कितना? 0.48 आएगा। दैट्स ऑल, इतना अच्छा है, देखिए इतना ही करना है। और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन सब लोग लिख लो, एक टाइप है ये क्वेश्चन का, ये मॉड्यूल में नहीं है, बता रहा हूं मैं टाइप क्या है। क्वेश्चन क्या है देखो, there are 3 genes, suppose there are 3 genes A B C, 3 genes हैं A B C, percentage of crossing over between A and B is 20%, B and C is 28%, ठीक है, एंड B और कौन सा है, A and C is 8%. What is the sequence of gene? What is the sequence of genes बोल के क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी बताना क्या, ABC बोल के एक ऑप्शन है, ACB बोल के एक ऑप्शन है, या BAC एक ऑप्शन है, या CAB बोल के एक ऑप्शन है। चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। ये टाइप का है ना क्वेश्चन, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे करना चाहिए, जो भी डिस्टेंस ज्यादा है पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, सबसे ज्यादा किसका बताया है? बी एंड सी का क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा बताया है, 28%। सबसे ज्यादा जो क्रॉसिंग ओवर दिया है क्वेश्चन में उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आने वाला है, राइट। मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर इज सीन बिटवीन डिस्टेंटली लोकेटेड जीन। मुझे एक ऐसा क्रोमोसोम चुनना है, क्या उसमें अरेंजमेंट ABC है, क्या उसमें अरेंजमेंट ACB है,
क्या उसमें अरेंजमेंट बी ए सी है, ऐसा ढूंढना है मुझे। तो आप बोलेंगे कैसे करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन ले लेके देखेंगे, पहले ए बी सी आता क्या देखेंगे आंसर। ए और बी के बीच में कितने बताया, 20% दिया हुआ है, लिख लिया मैं। और बी और सी के बीच में 28% दिया है। अब ये 20% प्लस 28%, समझे, 48% आना चाहिए दोनों मिलाकर अब। लेकिन ए और सी कितना बताया, 8% बताया, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। समझ गए बात। करेक्ट होना बोलते कितना आना चाहिए था उधर, कितना, 48 आना था, नहीं आया इधर। दूसरा ट्राई करता हूं मैं, आप ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, दूसरा ऑप्शन लेके देखता हूं। तो ए और बी के बीच में 20% बोल रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में मैं 20% लिख दिया। बी और सी के बीच में 28% दिया हुआ, ठीक है, लिख दिया मैं। और ए और सी के बीच में 8% बता रहा है, हाँ करेक्ट होता। तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है 20% बता रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस 28% आना था, ये भी नहीं होता राइट, इसका मतलब ये भी गया। अब थर्ड ऑप्शन कैसे राइट होता है देखो आप, बस एक टाइप का क्वेश्चन सीख लिए तो बस है इस टाइप के, हमेशा मेथड यही है सॉल्व करने का। अब बी ए सी लिखा मैं इधर, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है, बी और सी में बताया है, बिल्कुल बी और सी बहुत ज्यादा दूर दिख रहे हैं मुझे यहां पर, हाँ। तो ये 28% लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है। ए और बी के बीच में 20% बताया है ये, और ए और सी के बीच में 8% बताया है। 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28%, ये बिल्कुल राइट हो रहा है, सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी करके देखेंगे, सी ए बी, सी ए बी लिख सकता हूं क्या, देखेंगे चलो। तो ए और बी के बीच में फिर एक बार 20% बताया है, बी और सी के बीच में 28% बताया हुआ है, ए और सी के बीच में 8% बताया हुआ, दैट मीन्स सी और डी दोनों भी करेक्ट हो जाएंगे अरेंजमेंट, सी और डी दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है। सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट पॉसिबल अरेंजमेंट बता रहे हैं, कर सकते हैं ना वैसे क्वेश्चन, हाँ। एंड हु डिस्कवर्ड दिस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, who discovered arrangement of genes on the chromosome based on the frequency of recombination, Alfred Sturtevant. Alfred Sturtevant, student of T.H. Morgan, discovered chromosome mapping based on the frequency of recombination. Distance is more, crossing over is more, right? 1% क्रॉस ओवर का मतलब है, 1% क्रॉस ओवर का मतलब है 1 मैप यूनिट डिस्टेंस। जितना जितना क्रॉस ओवर होगा उतना डिस्टेंस होगा ना, लिखे सो हम, डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर। अगर 10% क्रॉस ओवर होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 10 मैप यूनिट का होगा। 100% क्रॉस ओवर होगा तो 100 मैप यूनिट का डिस्टेंस होगा। नहीं आ रहा समझने आपको, क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर। तो देखिए मैं आपको जो बताया बात समझ गए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके माइंड में फर्स्ट कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे आ जाते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड पे क्वेश्चन बना सकता है वो, ही कैन आस्क डायहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन, ही कैन आस्क मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन, ही कैन आस्क डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन। मेंटली रेडी रहो। कैरेक्टर कैन चेंज। मैं आपको
ऐसे पढ़ाया, ये क्रॉस करने पर 1:1:1:1:1 आता बोल के बोला मैं, है ना। लेकिन एग्जाम में चेंज कर देता हूं मैं, ऐसा पूछता नहीं कर सकते क्या? सेम ही है, वो सेम ही है ना, बस इतना रेडी रहना है बस आपको। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? तो आप बोलेंगे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे बोलो? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम? कैपिटल ए एक गैमेट, स्मॉल ए एक गैमेट, कैपिटल बी एक गैमेट, स्मॉल बी एक गैमेट। गलत ना, मैं ऐसा नहीं बताया आपको। मैं क्या बताया था, लिख के भी दिया था, 1 गैमेट हैव 1 allele फॉर 1 जीन। नहीं बोला मैं? 1 गैमेट हैव 1 allele फॉर 1 जीन। एक जीन का एक अलील रहेगा, एक जीन का एक अलील। यहां पे कितने जीन है? 2 जीन है, ए जीन है बी जीन है, ए जीन है बी जीन है। इसका मतलब गैमेट में क्या रहना? एक का एक अलील रहना, बी का एक अलील रहना। कौन सा भी ले लो आप, ए का एक अलील लो, बी का एक अलील लो, कौन सा भी ले लो। स्मॉल ए कैपिटल बी लेते हैं तो ले लो, स्मॉल ए स्मॉल बी लेते हैं तो ले लो। हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं लेना। क्यों? 1 गैमेट हैव 1 allele फॉर 1 जीन। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, 1 गैमेट हैव ओनली 1 allele फॉर 1 जीन। ऐसा बोलते आप। ट्राई हाइब्रिड का तो और मुश्किल हो जाएगा आपको, डाइहाइब्रिड का करने नहीं आ रहा तो ट्राई हाइब्रिड का कैसा करेंगे आप? मेरे को कितने गैमेट बनते हैं यहां से बताओ, और कौन कौन से बनते हैं बताओ। यहां से कितने बनेंगे गैमेट? 2 to the power of 3, 3 हेट्रोजाइगस हैं, 8 गैमेट बनेंगे। तो वो 8 कौन कौन से रहेंगे? नंबर 1 ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक हो गया। दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? वो रूल यूज कर रहा हूं, 1 गैमेट है 1 allele फॉर 1 जीन। मैं ए का एक लिखूंगा, बी का एक लिखूंगा, सी का एक allele लिखूंगा एक गैमेट में। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो लिख रहा हूं मैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी भी लिख सकता हूं मैं, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं मैं, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी लिख सकता हूं मैं। और 5th कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी लिख सकता हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख सकता हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी लिख सकता हूं। देखिए 8 टाइप के गैमेट हो गए, नहीं हुए 8 टाइप के गैमेट? 8 टाइप के गैमेट हैं। ये तो केस कुछ याद आ रहा है क्या? ये तो केस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर का है। ये स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय ए बी सी जीन बोल के बुक में लिखा हुआ है, ए बी सी जीन्स, ए बी सी। ऐसे पर्सन जो हाइब्रिड होते हैं फॉर ऑल द 3 जीन्स, उनको हम बोलते हैं मुलट्टो। जब 2 मुलट्टो मैरिज करते हैं, जब 2 मुलट्टो मैरिज करते हैं तो उनके कितने बच्चे बता होते हैं और कितने टाइप के रहेंगे? वो कितने ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे यहां पर? 2 मुलट्टो की मैरिज करा दो और कितने बच्चे बनेंगे वहां पे बताइए? 2 मुलट्टो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या बोला था मैं? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज इक्वल टू गैमेट स्क्वायर बोला था मैं। 8 स्क्वायर कर दे तो खत्म, 64 नहीं हुआ। ऑफस्प्रिंग्स के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला में? गैमेट स्क्वायर बोला था ना। यहां पे 8 गैमेट्स बने तो 8 स्क्वायर करूंगा मैं। ठीक है, चलिए आपको मैं क्या दिया हूं, आपको बोलिए। सबसे पहले अगर आपका नोट्स नहीं हुआ तो नोट्स करो, नोट्स हो गया। एनसीईआरटी नहीं हुआ, एनसीईआरटी करो, सही पैटर्न करो। अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ। एक बात बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैं। पहले नोट्स करना है, उसके बाद एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी हो गया है तो आप जो है आगे स्टेप, एक और स्टेप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, वो भी हो गए सर हमारे, तो लेवल 3 के क्वेश्चंस।
वो भी हो गया तो जो है और एक बार एनसीईआरटी रिवाइज करने का मौका। जितने बार आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। जितना आप अनवांटेड अननेसेसरी मटेरियल जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है वो पढ़ेंगे, उतने मार्क्स कम होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। आप बोलेंगे बायोलॉजी ज्यादा पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कम होंगे, बिल्कुल टाइम चला जाएगा ना। ये बात समझने आते आते 1 साल हो जाता बच्चों को, समझ गए? तो आप जो है गलती मत करो, जितना मैं बताया हूं सीक्वेंस वही फॉलो करते जाइए। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।